थ्योरी की बात करें तो स्टोरीज तो तुम्हें पता ही है कितना कम टाइम लगता है पढ़ने में। सो अपन ग्रामर का पोर्शन आज पढ़ने वाले हैं, तो मतलब काफ़ी टेंशन हो रही है यार इस पेपर की। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. How are you all doing? I welcome you all to my another episode of study vlog. So, as you all guys know, next exam of ours is of psychology, and yesterday I had done a little preparation for it, and yes, I had completed some of my few chapters in the late night. So, they are first therapeutic approaches, then attitude and social cognition, social influence and group processes, and last one, variation in psychological attributes. So yes, I have done 1, 2, 3, 4, 5, 5 chapters of them, of all the 7 chapters. So yes, our syllabus is going quite good till this time cause it's only 21, and yes, I have completed 5 to 6 chapters. So yes, I will be able to revise them all quite efficiently before we reach to the exam. So yes, our today's plan is quite simple. We are just going to complete another chapter from our 2 hours video, means psychological disorders, and after that I'll be studying them, and it will take the whole day cause 2 hours video, and then study it will take 1.5 hours, and it's already 10:30. So yes, it will take a lot of time, matlab 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, and yes, I will take then a half an hour or 1 hour's break, and after that we will go to run. So yes, our today's day will go like this. I had just taken some printouts in the morning, so yes, that's why I am starting today's vlog late. And yes, these are the papers of psychology, and it's so 23, 24, and 25, means 23, 24, 25 all guys understood. So yes, we are going to just study them, and while printing, I had gone to through them, and yes, I got to know one thing, that psychology exam is not gonna be easy as our physical exam, cause I have just if we see from upper side, the maximum marks which I will be deducted in our physical exam, I am getting 85. So yes, 85 is a good score. So as I had written the paper, it is a good score for me. So I had just gone through these sample papers, or you can say previous year papers, and yes, I found out that the psychology exam is not going to be easy, and yes, it is going to cut my butt. So yes, you can say that कि मतलब कि मैंने बस इसको पढ़ा था अभी. So I just realized that I am not getting anything, meaning some difficulty in understanding the questions, and also while writing or understanding the questions. So yes, मैंने मतलब पढ़े थे यही चैप्टर्स पहले भी, तब भी मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या बताऊँ. मतलब कि तुम लोग कह सकते हो कि मैं ये साइकोलॉजी का पेपर पहली बार ही दे रहा हूँ पूरे साल में, क्योंकि एक मैंने दिया था वो सीयूईटी का, जो हमारा एक मतलब तुम कह लो कि वो हुआ था प्रैक्टिस सेट, एक मैंने वो दिया था, और दूसरा मैंने दिया ही नहीं. मतलब कि मैं पीरियोडिक में भी एब्सेंट था, फिर मिड टर्म में भी एब्सेंट था, और फिर प्री बोर्ड 1 में भी एब्सेंट था, प्री बोर्ड 2 में भी एब्सेंट ही था, मतलब गया ही नहीं. सो यस, ये हमारा पहला ही पेपर होने वाला है साइकोलॉजी का, और यस, मेरे को कोई भी स्कोर नहीं पता है मैं कितना स्कोर करने वाला हूँ अपने साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में. एंड यस, तुमको तो पता ही है साइकोलॉजी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब समझ नहीं आती हैगी. एंड यस, वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं. सो यस, पूरा साल तो हमने बर्बाद कर दिया, तो चलो लास्ट का टाइम कुछ बर्बाद नहीं करते और थोड़ा अच्छे से पढ़ते. मैंने आसान चैप्टर्स पहले पढ़ लिए ताकि मैं इसको अच्छे से याद कर लूँ, क्योंकि लास्ट के चैप्टर से जैसे फिजिक्सल का पेपर में क्वेश्चंस बने थे 5 नंबर के, वैसे ही इसमें से भी बन जाएगा, तो 5 नंबर तो फिर सिक्योर कर लिए जाए. और हाँ, मैं भी अपनी साथ में देखो इंग्लिश की किताब लेके बैठा हुआ था, क्योंकि फिजिकल के बाद मतलब साइकोलॉजी के बाद अपना नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का होने वाला है, मतलब साथ ही साथ में पढ़ेंगे इसको भी, क्योंकि ये पेपर जब हमारा ख़त्म हो जाएगा साइकोलॉजी का 5 को, तो 12 को ही रहेगा इंग्लिश का. सो मेरे को थ्योरी पार्ट पढ़ने का इतना अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा. तो हाँ, इसीलिए मतलब कि आज अपन इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं साथ ही साथ में. और देखो इतनी मोटी बुक लेके बैठा हुआ हूँ, मतलब
तुम समझ सकते हो। सो इंग्लिश के सबसे पहले तो पैराग्राफ्स में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पैराग्राफ्स के लिए अपन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लेंगे। ग्रामर पढ़ने वाला हूँ इस वक्त, क्योंकि ग्रामर याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। सो मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे सारे रट जाऊँ, ताकि अच्छे से मतलब पेपर अपनी कम से कम ग्रामर पोर्शन में अच्छे नंबर बैठ जाएं। और बाकी अगर है, और दूसरा साइकोलॉजी का सैम्पल पेपर तो भाई साइड में फेंक दे, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, सो अपन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। सो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मैं तुमको कहता हूँ तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है साइकोलॉजी का। आज का व्लॉग मतलब कि मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी मुश्किल आ रहा है। और हाँ, मैं इधर वाले कमरे में इसलिए बैठा हूँ कि मतलब मेरे को अकेले बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो यस, पूरे कमरे में कोई भी नहीं है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी कह सकते हो। सो यस, मेरे को यहीं बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बीच बीच में मैं रील्स भी देख लेता हूँ। सो यस, चलो, तो मतलब काफ़ी टेंशन हो रही है यार इस पेपर की।